ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਮਕਸ਼ ਭੇਟ ਕਰਾਂ। ਪੇਸ਼ਤਰ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਲੜੀਵਾਰ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੀ ਦਾਸ ਨੇ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਇਸ ਵਕਤ ਵਿਚਾਰ ਬਣੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਉਂਝ ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਭਰਪੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਨਿਵਾਜਿਆ ਹੈ। ਵੇਖਣ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਸੁਣਨ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਬੋਲਣ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਚੱਲਣ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਕਰਨ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਸਪਰਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸੂੰਘ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕ ਦੋ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜ਼ੀਮ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਮਹਾਨ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਕਿ ਇੱਕ ਤੇ ਹੈ ਸਮਝਣਾ, ਸੋਚ, ਅਕਲ। ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਜੁੜਨਾ, ਭਾਵਕਤਾ, ਜਜ਼ਬੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਜ਼ਬਿਆਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਅਗਨ ਤੱਤ ਨਾਲ ਹੈ, ਅਗਨੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ। ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਜ਼ਬੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਠੰਡਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਸੰਬੰਧ ਜੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਜਜ਼ਬੇ ਹੀ ਸੰਬੰਧ ਜੋੜਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੋ ਇੱਕ ਸਮਝ ਤੇ ਇੱਕ ਜਜ਼ਬਾ। ਜਜ਼ਬਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਵਕਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਮਝ ਨੂੰ ਬੌਧਿਕਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਬੌਧਿਕਤਾ ਤੇ ਭਾਵਕਤਾ, ਇਹ ਦੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਸੌਗਾਤਾਂ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ ਨੇ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਕੁਝ ਕੰਮ ਦੇ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ ਵਸਤੂ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਸਮਾਂ ਵਿਅਰਥ ਕਿਉਂ ਕਰੀਏ, ਬਰਬਾਦ ਕਿਉਂ ਕਰੀਏ? ਕਿਉਂਕਿ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਕਿਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾਂਗੇ? ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਸਮਝਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦਸ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਚੋਟੀ ਦਾ ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਚੋਟੀ ਦਾ ਕਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸੰਗੀਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗੀਤ ਕਵੀਆਂ ਦੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਮੁਤਾਜ ਨੇ ਕਵੀਆਂ ਦੇ। ਉਹ ਖੁਦ ਗੀਤ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ, ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਧੁਨ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਚੋਟੀ ਦੇ ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਕਵੀ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਔਰ ਚੋਟੀ ਦੇ ਕਵੀ ਕੋਈ ਮੁਸੱਵਰ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਚੋਟੀ ਦੇ ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਸੰਗ ਤਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਔਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸੰਗ ਤਰਾਸ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਨਿਰਤਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਮਝ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਸਮਝ ਨੂੰ ਖਿਲੇਰ ਦਈਏ, ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ, ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ, ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ, ਸਭ ਕੁਝ ਅਧੂਰਾ ਰਹੇਗਾ। ਜੈਸੇ ਹੁਣ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ, ਸਰੀਰ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੰਗ ਇਤਨਾ ਮਹਾਨ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੰਗ ਦੇ ਵੀ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਹਕੀਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਵੈਦ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹੀ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹੀ ਕੰਨਾਂ ਦਾ, ਉਹੀ ਦੰਦਾਂ ਦਾ। ਉਹੀ ਤਾਪ ਚੜ ਜਾਣ, ਬੁਖਾਰ ਚੜ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹੀ ਗੁਪਤ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਇਹ ਕੰਮ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹਕੀਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਵੈਦ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੰਗ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ। ਕੋਈ ਆਈ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਹੈ, ਔਰ ਕੋਈ ਬ੍ਰੇਨ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਕਿਨ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਹਾਰਟ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਹੈ,
एक एक पुरजा शरीर का इतना महान कि बड़ा समा लग जाता उन्होंने समझण दे च। और फिर भी मैं अर्ज करा समझ पूरी नहीं, किसी कोल भी पूरी नहीं। अगर कोई डॉक्टर कहता है कि अखां दे संबंध च मैं पूरा जान लिया, उसके दावे फोके ने। पर जाने ये तो मनते हैं, पर पूरा ही जान लिया, इस तो अगे कोई जानकारी नहीं है, ये उसका कहना गलत है। एक एक अंग अपने आप दे इतना महान है, ब्रह्मंड ते कितना वड्डा है, महान है। और मैनू इंज भी दिसदा पिया वो दिन भी आने वाले ने जद सज्जी अख दुखेगी किसी होर डॉक्टर कोल जाना पेगा, खब्बी दुखी ते किसी होर कोल जाना पैना, उपर दे दंद दुखे ते किसी होर डॉक्टर कोल जावांगे, थल्ले दे दुखे ते किसी होर कोल जाना पेगा। वो दिन दूर नहीं ने, क्योंकि एक अंग अपने आप दे च महान है। तो मैं अर्ज करा समझ किसी एक दिशा दे च ही सही काम कर सकती है, चंगी काम कर सकती है, वरना नहीं। इसनों भी जान लीए, उसनों भी जान लीए, उसनों भी जान लीए, सारी जानकारी अधूरी रह जाएगी। इस वास्ते कोई भी जो जानकार है, स्पेशलिस्ट है, किसी एक अंग दा ही है, हर पक्षों नहीं है, हर पास्यों नहीं है। तो मुख्तसर मैं अर्ज करा, जिसनों समझना है उस नाल जुड़ना है, जिस नाल जुड़ना है उसनों समझना है। तो पहले समझना है कि पहले जुड़ना है? गुरु नानक कहते नहीं, पहले समझना है, जुड़ना बाद दे। जुड़ना भी है कि नहीं ये भी बाद दे, पहले समझना है। पातशाह जी दे बोल धन गुरु नानक देव जी महाराज दे, सुन मुंदे हरण आखिए गूढ़ा वैण अपार, पहला वस्त सियाणीए तांकी जे व्यापार। पहले सियाण कर ले, पहचान कर ले, समझ ले, खरीदी बाद दे च, लियावी बाद दे च, उन्हों अपनावी बाद दे च, पहले समझ। दुनिया दे च कुछ ऐसे मनुख ने समझदे बाद दे च ने, जुड़दे पहले ने। कुछ ऐसे ने समझदे ने पर जज्बे ठंडे होने करके जुड़दे ने। ऐसे भी ने। समझते बड़ी है समझ। भगत कबीर कहते ने इतनी वड्डी समझ है कि बातन ही आसमान गिरावे। ऐसियां उन्हां कोल गल्लां ने जमीन ते आसमान एक करके रख देणगे। ऐसी उन्हां कोल समझ है, ऐसी उन्हां कोल विचार है। और मनुख दंग रह जाएगा कि जमीन ते आसमान इसने देख कर दिता है। अजूबा समझ बड़ी है। और अक्सर जद समझ दी दुनिया च कोई बहुत अगे लंघ जाता है तो समझ नूं सब कुछ समझ लैंदा है तो जज्बे ठंडे पै जाते हैं। भावुकता नहीं रहिंदी, बस बौद्धकता ही बौद्धकता, भावुकता नहीं रहिंदी। भावुकता है जुड़न लई, और जिस नाल जुड़ना है उन्होंने समझ सकीए तो बौद्धकता है। ये दो शक्तियां परमात्मा ने बड़ियां निरालियां ते अजीम दित्तियां ने मनुख नूं। ये गल वखरी कि उंज बहुत कुछ है मनुख कोल। हथ ना आवन तां भी अपंग है, पैर ना आवन तां भी रह जाएगा, अखां ना आवन, कन ना आवन, बहुत कुछ घट जाएगा। लेकिन ये सब कुछ अपनी थां ते बौद्धकता ते भावुकता अजीम ने, सब तो महान ने। कहते ने दुनिया च कुछ ऐसे पुरुष ने भाव प्रधान ने, कुछ मनुख ऐसे ने बौद्धकता दे तल ते प्रधान ने, बोध प्रधान ने। विचारवाना ने तो इस तरह की भी विचार की है कि स्त्री भाव प्रधान है, पुरुष बोध प्रधान है।
इस तरह कहते हैं, भावकता ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬੌਧਿਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਇਸਤਰੀ ਦੇ 'ਚ। ਬੌਧਿਕਤਾ ਭਾਵਿਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਪੁਰਸ਼ ਦੇ 'ਚ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੋਵੇਂ ਅਧੂਰੇ ਨੇ। ਇਸਤਰੀ ਜੁੜਨ ਦੀ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਏ, ਜੁੜ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਏ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ। ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਫ। किधर मैं स्त्री की तोहीन नहीं कर रहा, पुरुष भी इस तरह ही है, समझते जाता है, कई दफा समझ लेंदा है, जुड़ नहीं सकता, भावकता नहीं है। ये अपनी थां ते जो है रह जाता है। बौद्धिकता नूं कहंदे ने अखां, भावकता नूं कहंदे ने पैर। अगर रस्ता वेख लिया तो हुण चलण लई ते पैर चाहिए ने। अखां हैन पैर नहीं तो रस्ता वेख लिया चल नहीं सकता। पैर हैगे ने अखां नहीं तो फिर ते भटकना है, सज्जे खब्बे भटकेगा। कुछ विचारक कहंदे ने बौद्धिकता दे नालों भावकता महान है। इस तरह के पुरुषों ने इस्त्री नूं महान कह दिता है इस हिसाब नाल। और जिस दे अंदर भावकता प्रधान होवे कह देंदे ने ये ते इस्त्री वर्ग है। मैं फ्राइड मनोविश्लेषण जो हिंदी की एक बुक इस वक्त भारत की सब तो महंगी बिक रही है, किधरे जर्मन भाषा दे मन दियां लहरां बारे, मन दियां गहराइयां बारे किधरे फ्राइड ने लिखिया सी, वो अज हिंदी दे अनुवाद हो गया है। फ्राइड मनोविश्लेषण। उसका एक कहना कि भारत दे संत ऋषि मुनि इस्त्रेण ने भाव, इन्हां दे अंदर भावकता प्रधान है। जिसम इन्हां कोल पुरुष दा है, इन्हां कोल अंदरूनी हिस्सा सारे दा सारा इस्त्री दा है। इस्त्रेण ने वो इंज कहंदे ने। फ्राइड दा कहना इंज है, भावकता प्रधान है, बड़ी प्रधान है। और मैं ये भी अर्ज करा, वो जद कह रहे हैं भावकता प्रधान है तो कटाक्ष कर रहे हैं, भाई कुछ भी नहीं है। भावकता ते भटकांदी है, ये भटके हुए लोग ने। भावकता ते भटकांदी क्योंकि अखां ते कोई नहीं, भावकता है। पैर हैगे ने अखां नहीं। पर मैं अर्ज करा, अखां हैं पैर नहीं, रस्ता वेख ते लिया ते चल नहीं सकता, दोवें पैर कोई नहीं इस कोल। भावकता शायद भटक भटक के कदी पहुंच भी जाए, क्योंकि चलना तो उसदे कोल है ना। पर जिस कोल वेखना है, चलना नहीं, सारी जिंदगी वेखनी च ही लंघ जाएगी, पहुंचेगा किधरे भी नहीं। अक्सर ज्ञानी रह जाते ने, भावक पहुंच जाते हैं। ये भी मैं अर्ज करते हैं। हर जस सुने ना हर गुण गावे, बातन ही असमान गिरावे। भगत कबीर के अंदर बड़ी समझ, बड़ी अकल, और ऐसी अकल है कि जमीन आसमान नूं एक करके रख देंदा है। लेकिन फिर भी धन गुरु नानक देव जी महाराज कहते ने, प्रथम समझना है, फिर चलना है, फिर जुड़ना है। पहला वस्त सियाणीए तां की जे व्यापार। समझना अख है, क्योंकि अख देखदी है, समझ देखना है, अकल देखना है। पहला वस्त सियाणीए ताकि जे व्यापार। पर धन गुरु नानक देव जी महाराज ने इस दे उत्ते जो प्रमाण दिता है, सुन मुंदे हरण आखिए। ऐ मुंदे, ऐ हिरन वर्गी अख रखण वालीए।
परिपूर्ण परमात्मा ने कुछ खूबियां वंडियां ने। बड़े सुंदर पंख उसने मोर नूं दिते ने और किसी पंखी नूं नहीं। बड़ी सुंदर आवाज उसने कोयल नूं दिती है, किसी नूं नहीं। ऐसी मधुर आवाज किसी कोल भी नहीं जो कोयल कोल है। बड़े सुंदर नेत्र दिते ने उसने हिरन नूं, मिर्ग नूं। ऐसे सुंदर नेत्र होर किसी कोल भी नहीं। ये सारियां खूबियां इस तरीके नाल श्रृंगार रस दे ग्रंथां विच मिलदियां ने ते स्वप्न दे 32 लक्षण मने गए ने। 32 भगत नामदेव जी इसका जिक्र भी करते हैं। प्रणवे नाम देओ नाह के बिना ना सोए 32 लखना। एक हिरदे दे च नाम नहीं ते सुंदरता दे 32 लक्षण कोल होवन करूप है। ठीक है, आवाज भी मधुर है, नैन भी मृग नैन ने, चाल भी हंस जैसी है, मुखड़ा भी कमल जैसा है। सारे 32 जो है लक्षण बयान करते ने स्वप्न दे। पर एक हिरदे च नाम नहीं। भगत कबीर भी कहते हैं, कहो कबीर जैसे सुंदर स्वरूप, नाम बिना जैसे कुबज करूप। कुछ भी नहीं। नामदेव ते इत्थे तक कहते ने कि हे परमात्मा, ये बंदे मेरे मत्थे ही ना लावी कदी। केड़े? जो ना भजनते नारायणा तिनका मैं ना करूं दर्शना। मैं वेखना नहीं चाहता। जिन्हां दे दिल दिमाग दे तेरी समझ नहीं, तेरी याद नहीं, ये मेरे मत्थे ना लावी। क्यों? इन्हां कोल बैठांगे, मत्थे लगणगे, तू भुलेगा। असी अरदास दे च जो शब्द ऐड कीते ने, सेई संत गुरमुख प्यारे मेल, जिन्हां मिलिया तेरा नाम चेते आवे। जिन्हां दिसंदणिया मेरी दुरमत वंजे, मित्र असाडड़े से। तो मैं अर्ज करें, ये 32 लक्षण ने स्वप्न दे, जिस दे च अगर नेत्र खूबसूरत ने तो कह दिता जांदे ते मृग नैन, क्योंकि सारे हिरनां नूं परमात्मा ने अखां खूबसूरत दित्तियां ने। आवाज बड़ी मधुर है तो बई ते कोयल जैसी, क्योंकि हर कोयल मधुर कंठ नाल बोलदी है। चाल दे च कोमलता है तो कह दिता जांदा है हंस चाल है, क्योंकि सारे हंस अपनी गति दे च, अपनी चाल दे च कोमलता रखदे ने। ये तो खैर मुख्तसर दो चार मैं अर्ज कीतियां गल्लां। सुन मुंदे हरण आखिए, ऐ हिरन वर्गी अख रखण वालीए। इस नाल क्यों तशबीह दिती? नेत्र जरूर खूबसूरत ने हिरन दे, पर हिरन नेत्रां करके ही ठगाया जांदा है, धोखा खा जांदा है। दूरों तपदी होई रेत नूं पानी समझ बैठदा है। सहरा दे च अक्सर हिरन धुप नाल जो जमीन तपदी है, दूरों वो देखदा है पानी, प्यासा है, दौड़दा है। जद कोल पहुंचदा है पानी नहीं, वो ते रेत है। पर हुण जद दूर वेखदा है तो फिर पानी दिखाई देंदा है, फिर दौड़दा है। कोल पहुंचदा है, पानी नहीं, वो ते रेत है। दौड़ दौड़ के सहरा दे च अपने प्राण दे देंदा है, पानी हथ नहीं लगता। भी चलो तू एक दफा देखिया, धोखा सी, तपदी हुई रेत सी, तैनू पानी दिखाई दिती, पर तू दोबारा धोखा खादा, फिर तिबारा धोखा खादा, और धोखा खा खा के मर गया। तो धोखे च ही रहा, और ये धोखा तैनू अखां ने दिता। शेख सादी साहब ने किधरे गुलिस्तान दे च लिखिया, उसका भाव मैं थोड़े सामने रखा। कहंदे ने, ऐ धोखेबाज, तू मैनू धोखा दिता, तेरे ते लानत।
पर ऐ धोखेबाज तू दोबारा मैनू धोखा दिता, हुण मेरे ते लानत। वो इंज कहंदा है। मैं एक दफा फिर लफ्ज़ दोहरावां, ऐ धोखेबाज तू मैनू धोखा दिता, तेरे ते लानत। पर ऐ धोखेबाज तू दोबारा मैनू धोखा दिता, हुण मेरे ते लानत। धोखा एक दफा खाया है, मनुखी सुभाव है। गलती एक दफा हुई है, मनुखी सुभाव है। और मनुख गलतियां तो सीखता है, ये भी मैं अर्ज कर दें, मनुखी सुभाव है। पर एक कोई गलती बार बार और जीवन भर भुलावड़े भुल्ली भुल भुल पछोताणी, भुल कीती पछतावा कीता, फिर भुल कीती पछतावा कीता, फिर भुल कीती फिर पछतावा कीता, जिंदगी इस तरह ही लंघ गई। भुलां दे भुलावड़े भुल्ली भुल भुल। कदी जिंदगी नूं गहराई नाल वेखण दी कोशिश करना, एक गलती एक दफा नहीं, पता नहीं जिंदगी च कितनी दफा आउंदी है। क्रोध कीता पछताए, फिर क्रोध कीता पछताए, फिर क्रोध कीता पछताए। थोड़ा जिहा सुचेत बंदा झूठ बोले है पछताया है, फिर झूठ बोले है पछताया है, फिर झूठ बोले है पछताया, सारी जिंदगी इस तरह ही गई। धोखा दिता है पछताया है, फिर धोखा दिता है पछताया है, फिर धोखा दिता है और देंदा ही रहा। भुलावड़े भुल्ली भुल भुल पछोताणी, एक कोई गलती जीवन भर चलती रही, एक कोई भुल जिंदगी भर जो है चलती रही। तो वेखना और चलना, ये दो अजीम ताकतां परिपूर्ण परमात्मा ने सानू दित्तियां ने, भावकता ते बौद्धकता। तो हुणे तुसीं सरवण कर रहे सी अजीज अमरजीत सिंह जी तो, पहले सुनना है, क्यों समझ जाए तो सुन के ही समझ मिलेगी, उंज नहीं। बोला तो ही पता चलेगा, उंज नहीं, सुन के ही पता चलेगा। और ये मनुख दी दुनिया जो इतनी सूझवान हो सकी, बहुत कुछ इसनों जीवन दे कई तल तो प्राप्त होया सुन सुन के। पुराना सुने होया पिछे सुट दईए, मनुख दा अगला भविष्य भी खो जाएगा। ये भी मैं अर्ज कर दें, पुराणियां नूं आधार बना के मनुख अगे चलदा है, अगे चलदा है। पर जिन्हों समझना है और उस नाल जुड़ना है, तो जुड़न लई भावकता चाहिए है, जज्बा चाहिए है। जिस दे जज्बे ठंडे होवन, संबंध नहीं जोड़ सकता। जिदी बौद्धिकता घट होवे, वो समझ नहीं सकता। जिदी भावकता घट है, वो जुड़ नहीं सकता। ये सारी खोज हिंदुस्तान दे चली आयुर्वेद दी, जड़ी बूटियां दी। मूल धनंतर है। जैसे लुकमानी तिबदा यूनानी तिबदा जन्मदाता हकीम लुकमान है, आयुर्वेद दा जन्मदाता वैद धनंतर है। इनू 14 रत्नां दे एक रतन कहंदे ने, वैद धनंतर रतन है भारत दा। इतनी सूझ दिती इसने, इतनी समझ दिती, जड़ी बूटियां दा ज्ञान दिता, बीमारियां दा ज्ञान दिता। वो यही कहंदा है कि आयुर्वेद ग्रंथ और आयुर्वेद औषधियां इलाज नहीं करदियां, उपचार नहीं करदियां, संतुलन ठीक करदियां, तवाजन जो बिगड़ गया शरीर दे। इलाज नहीं, संतुलन तवाजन बिगड़ गया। जितनी गर्मी शरीर दे चाहिदी सी घट गई है या वध गई है। अगर वध गई है तो कहंदे ने पित्त प्रधान हो गया। शरीर दे जितनी पानी दी तासीर चाहिदी सी वध गई है तो कफ प्रधान शरीर कह दिता जाता है। समुचे शरीर दे जितना वायु दा तवाजन चाहिदा सी चलदा फिरदा नहीं रहा। हथ दे उत्ते हथ धर के बैठा रहा या बैठक दा ही काम सी तो कुदरती गल शरीर वाई हो जाएगा, बादी हो जाएगा।
तो फिर ये वायु प्रधान शरीर हो गया, संतुलन बिगड़ गया, तवाजन बिगड़ गया। इलाज की ये कुछ भी नहीं, कहते ने तवाजन ठीक करो। और संतुलन बहुत समय तक बिगड़िया रहा तो सारी शरीर दी मशीनरी नाकारा हो सकती है। वह धनंतर दा ख्याल, जैसे गड्डी दा एक पुर्जा खराब है तो चलते रही है, जे आवाज कर रही है, चल रही है, लेकिन फिर चलांदे ही गए, ठीक ना की थी तो हो सकता सारे इंजन नूं ही ले बैठे, सारी गड्डी नूं ले बैठे। सेम यही कुछ शरीर दे नाल है। बकौले वह धनंतर। महाराज कहते सूझ समझते सारिਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੈ। ਜਜ਼ਬੇ ਤੇ ਅਕਲ, ਭਾਵਕਤਾ ਤੇ ਬੌਧਿਕਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਵਾਜ਼ਨ ਵਿਗਾੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਸ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸੰਤੁਲਨ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਫਾ ਬੌਧਿਕਤਾ ਤੇ ਭਾਵਕਤਾ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿਗੜ ਗਿਆ, ਜੀਵਨ ਦੁੱਖ ਦੇ ਚ ਬਤੀਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। संतुलन बिगड़ना की है, बौद्धिकता इतनी वध गई है, भावुकता रही नहीं, अकल ही अकल है। हुण इकबाल जैसा आम शायर भी कहता है, तेरे सीने में दम है दिल नहीं है, तेरा दम गर्म ये महफिल नहीं है। तेरे दिल विच गर्मी ते रही नहीं, तेरे जज्बे ठंडे हो गए, तेरे च भावुकता ते है ही नहीं। निकल जा अकल से आगे कि ये नूर चिरागे राह है मंजिल नहीं है। अकल ते रस्ते दा दीवा सी, रस्ता वेखण वास्ते सी। बौद्धिकता ते सी सिर्फ इस वास्ते रस्ता वेख लें, पर तू बस रस्ता ही वेखदा रहा, रस्ता ही वेखदा रहा, चलिया ही नहीं, क्योंकि तेरे जज्बे ठंडे पै गए, तेरे विच भावुकता नहीं है। और भावुकता है, बौद्धिकता नहीं, कोई इस तरह भी तवाजन खो बैठ देना है तो भटकना जीवन भर आउंदी है। ये तो हुण कदी कदाई ऐसा हो सकता है कि भटके हो भी चलो भटक भटक के किधर दरवाजे ते पहुंच जाए। जैसे कई दफा अंधे भी भटक भटक के टिकाने ते पहुंच जाते हैं। भावुकता हो सकता है किधरे हजार दे चो एक कद नूं मंजिल ते पहुंचा दे, एक नूं, बाकी ते सारे भटक जाणगे। लेकिन बौद्धिकता हजार दे च एक भी नहीं पहुंच सकता, बस क्योंकि वो तो देखदा चलदा है ही नहीं, बिल्कुल नहीं चलदा, सिर्फ देखण दे ची शौक है। पता नहीं कितने दुनिया दे च मैनूं ज्ञानी मिले ने, कहंदे ने ज्ञानी जी सानूं सुणन दा ही शौक है, पढ़न दा ही शौक है, बाकी कुछ नहीं। जद उन्हां दा मैं ज्ञान देखदा तो मैं उन्हां कोल पुछदा अमृत वेले उठदे हो जप करदे, कहंदे नहीं सानूं बस सुणन दा शौक है, पढ़न दा शौक है, बस बौद्धिकता बौद्धिकता है और कुछ भी नहीं है। तो इस बारे इकबाल इंज कहंदा है, ये ठीक है दिल के पास रहे पासबाने अकल। पासबानी अकल दी चाहिदी है, रखवाली अकल दी चाहिदी है, क्योंकि दिल भोला है, दिल भावक है, दिल जज्बाती है। ये चलेगा, गलत ना चल पाए, किधरे भटक ना जाए तो रखवाली ते चाहिदी। इस वास्ते बुद्धि नूं मां भी कहंदे ने, बौद्धिकता नूं मां भी कहंदे। ये ठीक है कि दिल के पास रहे पासबाने अकल, लेकिन कभी कभी इसे तन्हा भी छोड़ दे। एक छोटा बच्चा सी, मां उसका हाथ पकड़ के चलांदी सी, अज वो जवान हो गया है ते हुण भी मां आखे मैं तेरा हाथ नहीं छोड़ना, तो ये मां यकीन जानो डायन बन जाएगी, गुस्ताखी मां। हुण ते हाथ छोड़ना पएगा, हुण उहनूं चलण दी जाच आ गई है,
पर तू आखे नहीं मैं इस तरह इसनों चलाया सी, ये नहीं चल सकता सी, मैं इस तरह इसनों चलाया सी, चलाया होवेगा पर हुण चल सकता है। पर कोई मां जिद करे नहीं मैं हुण भी हथ पकड़ के ही चलाना है, उंज नहीं तो वो तो अपंग हो जाएगा, वो तो रह जाएगा। इकबाल कहता है हुण अकल नूं किसी वक्त एक पासे भी कर दे, सुट दे परे, हाथ छुड़ा ले इस तो। अगर ये अकल ये मां हुण भी हाथ पकड़े नहीं इसनूं एक पासे कर। किस वक्त एक पासे करिए? जद अल्लाहू अल्लाहू करना है, डॉक्टर मोहम्मद इकबाल। जद वाहेगुरु वाहेगुरु जपना है, अकल एक पासे सुट। जद बाणी पढ़नी है, अकल एक पासे सट। पता नहीं कितनिया ने मैनू आखे अर्थबोध ते सानू आउंदे नहीं ते बाणी पढ़ के की करिए, तो मैं कि जिन्हां नू अर्थबोध आउंदे ने फिर वो ते सारे ब्रह्म ज्ञानी हो जाने चाहिए ने। जिन्हां नू आउंदे ने वो किहड़े ब्रह्म ज्ञानी हो गए ने, वो किहड़े रब नाल जुड़ गए ने, ये किहड़े चक्रां च पए हो, ये किस भुलेखिਆਂ च तुसीं पै गए। बाणी इंज पढ़ो अंदर ये भाव करके कि गुरु नानक दी बाणी पढ़ रहे हैं और गुरु नानक दी बाणी खसम दे बोल ने, परमात्मा दे बोल ने। क्या थोड़ी गल है कि साडी जबान ते परमात्मा दे बोल, क्या ये थोड़ी गल है? जबान ये झूठी जबान, इस दे ते खसम दे बोल आ गए, परमात्मा दी बाणी आ गई, परमात्मा दे बोल आ गए ने। यही एक जज्बा झरनाट पैदा कर देगा। इतना एक जज्बा सारी पवित्रता नूं अंदर पैदा कर देगा। मैं बड़ा खुशकिस्मत, मैनू परमात्मा दे बोल पढ़न नूं मिल गए, मेरी जबान पे उच्चारण कर दिए वो बोल जो परमात्मा दे ने। क्या थोड़ी गल है? ये तो बहुत वड्डी सौगात है। अर्थ तेनू आ भी गए तो की हो जाना, जिन्हां नूं आउंदे ने अर्थ वो किहड़े जो है परम पुरख हो गए ने। इस चक्कर च नहीं पैना चाहिए। पढ़ते जाओ, चलते जाओगे, पहुंच के सारे अर्थ खुल जाएंगे और वो सही अर्थ होंगे। इस तो पहले मैं अर्ज करा कोई भी अर्थ नहीं है। तुसी आखोगे मैं की आख रहा, इस वास्ते कह रहा घट तो घट मैं अपनी जिंदगी 50 टीके जपजी साहब दे देखे ने। 50 एक दे अर्थ दूजे नाल नहीं मिलते। उदासियां दे टीके, निर्मलियां दे टीके, फिर प्राचीन टीका भाई साहब भाई संतोख सिंह जी का गर्भगंज ने, सोडी तेजा सिंह, फिर फरीदकोटियां दे टीके भाई वीर सिंह, बाबा बिशन सिंह, फिर पंडित गणेशा सिंह, पंडित तारा सिंह नरोत्तम, फिर सत्तो अली गली संत अमीर सिंह उन्हों का टीका, फिर प्रिंसिपल साहब सिंह ने, पता नहीं कितने टीके प्रिंसिपल गंगा सिंह ने भी किया। और मैं हैरान, एक अर्थ दूजे नाल नहीं मिलते। या तो कहिए ये सारे ही गलत ने, या कहिए कोई एक ठीक है बाकी सारे गलत ने। आखिर एक ही ठीक हो सकता है ना, क्योंकि एक दे अर्थ दूजे नाल नहीं मिलते। गुरु ग्रंथ साहब दे सारे अर्थ भी एक दे दूजे नाल नहीं मिलते। तो हुण की आखिए सारे गलत ने, या फिर फैसला करिए एक ठीक हो सकता है बाकी सारे गलत ने। और किहड़ा एक ठीक होवेगा? लोकां दी अपनी अपनी ममता है, लोकां दे अपने अपने जो है भावकता है, जुड़े हुए ने, कोई जात करके बिरादरी करके। कोई कह देंदा नहीं बस सोडी तेजा सिंह ही महान ने बाकी नहीं। कोई कह देंदा नहीं कवि संतोख सिंह जी का टीका अजीम है बाकी कुछ भी नहीं। लेकिन कुछ कह देंगे प्रिंसिपल साहिब सिंह महान ने, कोई कह देंगे नहीं ये किस तरह हो सकता है, भाई वीर सिंह तो अगे कौन हो सकता है। कोई बाबे बिशन सिंह नूं अगे लियाणगे, कोई उदासियां नूं अगे लियाणगे, संप्रदाय लियाणगे संत अमीर सिंह नूं अगे। नहीं जी उन्हां दा टीका महान है। मैं ते विचकारे में थोड़ा टाइम ले बैठा, 50 टीके ने, एक टीका दूजे नाल नहीं मिलता। तो हुण की करिए? या ते फैसला करिए एक ठीक है बाकी सारे गलत ने, या कहिए सारे ही गलत ने।
तो मेरी समझ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ आई है सारे ही ठीक ने, एक भी गलत नहीं, सारे ही ठीक ने। वो किस तरह? जपजी साहब एक सागर है रत्ना नाल भरिया होया, पता नहीं कितने रत्न पए ने। ਜਿਹੜਾ टीकाकार जितना गहरा चला गया ते सागर दे जिस कोने च चला गया, हुण हर पासे थोड़ी जाएगा, सागर दे जिस कोने च चला गया मोती उसनूं लभ पए ने, उस तरह दे नीलम पन्ने उसनूं लभ पए ने। चूंकि हैं सारे ही सागर दे मोती, इस वास्ते सारे ही ठीक ने। यह गल वखरी है, पता नहीं सागर दे किहड़े कोने चों लभ के लिया है, किस कुंठ चों लभ के लिया है। मंजी साहब गुरुद्वारा साहब दरबार साहब दा कथा स्थान, उत्थे विवाद चल रहा सी और सुभाव के मैनू किधरे गल फुर गई, धन गुरु रामदास जी ने बख्शिश कर दी। मैं कहा विवाद कानू करदे हो, सारे ही ठीक ने। 3-4 तरह के विद्वान ते बहुत भयंकर विद्वान जो है विवाद चल पाया और मैं देखिया विचार तकरार बनन लग पई है। भाई संतोख सिंह जी कहन जद विचार तकरार बनन लगे तो विचारक एक पासे हो जाता है, क्योंकि हुण तकरार बनन लग पई है ते तकरार विचार होंदी ही नहीं। अगर फिर कोई तकरार दे शामिल हो गया है तो भाई संतोख सिंह जी कहते ने विचारक नहीं है, विचारक फिर एक पासे हो जाता है, हाथ जोड़ के एक पासे हो जाता है। ठीक है, फिर तुसी ठीक हो, आपां एक पासे। मैं उत्थे देख ले ये ते विचार तकरार ते किधरे हाथापाई तक नौबत ना आवे, तकरार जो हो गई ते उत्थे मैं समा मंग लिया। मैं कि 2 मिनट मैनू भी वक्त दे दो, मैं कुछ कहना है। वो सारे कहने लगे काफी देर दे ते तुसी चुप बैठे, बोलदे ही नहीं। मैं कहा मैं हुण बोलना मुनासिब समझना है, क्योंकि हुण विचार तकरार बनन लग पई है। कि जो पानी सी अग हो गया, जिन्हें खेतां नूं हरा भरा करना सी ते जलाएगा, साड़ेगा। मैं कहा सारे ही ठीक ने। कहने ये किस तरह, किस दृष्टिकोण नाल तुसीं कहंदे हो? दृष्टिकोण रखो, क्योंकि सारियां कोल दृष्टिकोण सन। कोई ग्रामर नूं अगे लैंदा सी वे ग्रामर अनुसार प्रिंसिपल साहिब सिंह बिल्कुल ठीक ने, पर कोई कहंदा सी भावकता तो हीणे ने, बौद्धकता ही बौद्धकता है। इस वास्ते ये टीका खुश्क है, बड़ा रस नहीं है। इहदे लोकां कोल प्रमाणिकता सी, बकायदा दलीलां सन, ये भी मैं अर्ज करदे हां। और उन्हां सारियां दलीलां इत्थे सामने रखीए तो गुस्ताखी मां बंदा नास्तिक भी हो सकता है, इन्नियां दलीलां उन्हां ने इकट्ठियां कीतियां। मैं कहा सारे ही ठीक ने। ते कहण लगे प्रमाणिकता, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਐਵੇਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਠੀਕ ਨੇ। ਐਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਈਏ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਈਏ, ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਜਪਜੀ ਇੱਕ ਮਹਾਸਾਗਰ ਹੈ ਔਰ ਸਾਗਰ ਨੂੰ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਤਨਾਕਰ, क्योंकि कहने रतन सागर दे चों निकले। और मन लेंदे आ क्योंकि जीवन सारा पानी चों निकलिया, साचे ते पवना भाया, पवने ते जल होए। तो जे सारा विकास पानी तो चले तो मन लेना चाहिए पानी चों रतन निकले। रतन आकर रतना दी खान, रतन उपाय धरे खीर मथिया, होर भखलाए जे असी किया, कह नानक छपे क्यों छपिया, एक ही वंड दिया। आसा मल्ला पहला महाराज भी इसनूं रतनाकर कहंदे ने, रतना दी खान। तो मैं कहा जपजी एक सागर है, रतना दी खान है। अतकी दास ने मूल मंत्र आप जी के सामने रखा है। फिर दोबारा मुलाकात हुई, सतगुरु ने सेहत बख्शी, जिंदगी बख्शी, तो शायद जपजी साहब दियां कुछ विचारां आप जी के सामने रखी। मैं कहा यह सागर है, ते सागर दे ते सारा फूलना फरोल करनी औखी है। तू दरिया दाना बीना, मैं मछली
कैसे अंत ला। हुण एक मछली किवें नापे सारे सागर नूं, कई कोणे ने इसने, फैलाव है बहुत वड्डा है। तो मैं कहा सारे ही ठीक ने, जिस जिस कोणे दे जिस जिस गहराई चों जो कुछ भी जो लभ के लैन है ते सागर दा ना, अर्थ ते जपजी साहब दा ही ने ना, है ते इस सागर दा ही, तो सारे ही ठीक ने। अगर कोई संख भी कट के ले आया तो सागर दे ही ने, अगर कोई सिपियां भी कट के ले आया तो सागर दियां ने, अगर कोई मोती भी कट के ले आया तो सागर दे ही ने, सारे ही ठीक ने। ये उस जमाने की गल है जब इस विवाद विच बाबा गुरमुख सिंह पटियाले वाले भी बैठे सन चुप, हाथ जोड़ के खड़े हो गए, कहने लगे मस्कीन गल ये है, गल तेरी ठीक ना होंदी होई भी असीं मन लैंदे हां, गल खत्म। उठा दी उन्होंने सभा। कहने लगे गल तेरी ठीक ना ही होंदे होया तकरार खत्म कर दी है। चलो असीं तकरार खत्म की थी, चले। ते मैं सुभावक बाद विच पुछ लिया जब कमरियां च गए, मैं कहा बाबा जी तुसीं इस तरह कहे कि मेरा दिल तोड़िया, मैं तो ऐसा मनदा सारे ही ठीक ने। कहने लगे मैं भी इस तरह ही मनदा, पर हुण तकरार करन वालियां नूं भी ते राजी रखना सी ना, कहंदा सिर्फ तैनूं राजी थोड़ी रखना सी। कहने लगे उन्हां नूं ते चुप कराना सी, उन्हां नूं भी ते शांत कराना सी। मैं कहा बड़ी नीति खेड गए। कहने लगे नीति ना वरतीए तो इस तरह हो सकता सी, हाथापाई हो जानी सी, बहुत कुछ हो जाना सी। तो खैर मुख्तसर जो है मैं अर्ज करा, ये अथाह सागर है आप अपनी बुध है जेती, वर्णत भिन्न भिन्न तोहे तेती। धन गुरु नानक देव जी महाराज कहते ने संबंधां नूं समझना है, संबंधां नाल जुड़ना है। संबंधां दी समझ पशु नूं नहीं है, उन्हें कुछ भी नहीं पता कौन नानके ने, कौन दादके ने, कौन सौरे ने, कुछ भी नहीं पता। कौन मां है, कौन भैन है, कौन पिता है, भरा कौन है, पुत्र कौन है, पोतरा कौन है, परपोतड़ा कौन है। दादकियां दी कोई समझ नहीं, नानकियां दी कोई समझ नहीं, सौरियां दी कोई समझ नहीं, संबंधां दी समझ ही नहीं कि खाक जुड़ेगा वो नहीं जुड़ सकता। इस वास्ते पशुआं दी परिवारक जिंदगी नहीं बन सकी, और जिथे जिथे मनुखां दी भी परिवारक जिंदगी ना बने तो समझ लेना नानके दादके सौरियां दी समझ इत्थे भी नहीं रही, भावुकता मिट गई। ये भी पशुआं दी तरह जीण लग पे, परिवारक जीवन खत्म, परिवारक दृष्टिकोण खत्म। मैं तो पता नहीं किस मैगजीन दे च पढ़िया सी, हुण ते मकान ही मकान दिखाई देंदे ने, घर ते खत्म हो गए। मैं कहा हद हो गई, घर ते मकान दे च फर्क। कहंदा हुण ते मकान ही मकान रह गए ने, घर ते खत्म। घर ते वो हुंदा जिथे परिवारक जिंदगी होवे, नानके दादके सौरियां दे संबंध होवन, बस मकान ही मकान रह गए, घर ते रह ही कोई नहीं। घर ते खत्म होंदे जा रहे हैं। मनुख भी शायद पिछे मुड़ पिया है, इहदी बौद्धकता किधरे इसनूं पशु ना बना देवे। ऐसा होंदा है, मिठे नूं बहुत तरकाईए ते मिठा कौड़ा बन जाता है, शराबी बन जाता है, और की है, मिठा ही कौड़ा हो जाता है। बौद्धकता त्रक के सिवाय कुड़तन तो होर कुछ भी नहीं बनती। तो खैर मुख्तसर मैं अर्ज करा, संबंधां नूं समझना है, फिर जुड़ना है, ते जुड़न लई चाहिदी है भावुकता। ते जिस दे अंदर भावुकता परमात्मा दे प्रति पैदा हो जाए उसे नूं कहंदे ने भगत। ये दो शब्दां दा जोड़ है भगत, भाव अंकित। भाव अंकित, भाव इत्थे जिहड़ी भावना है टिक गई है, अंकित हो गई है, भाव अंकित। तो इन्हां दो शब्दां नूं संस्कृत शैली ऐसी है कि ये दो शब्दां नूं, तीन शब्दां नूं इक्को ही शब्द विच बयान करदे ने। जैसे एक पद है जयदेव जी दा, परमाद पुरख मनो पिमंग सत्य आदि भाव रतन, पर मदभुतन पर कृत परन जद चिंत सर्वगतन, केवल राम नाम मनोरमंग बद अमृत तत्मयं। हुण शब्द ते है परमाद, ऐड़ा विचों कढ़ दिता है परमाद, एक अखर बना दिता है।
पुरख मनो उपमंग, मनो उपमंग शब्द है, मनो उपमंग ऐड़ा विचों कढ़ दिता, एको शब्द कर दिता है मनो उपमंग। ये जयदेव ने कला इत्थे वरती है अपने पदे दे गुजरी राग दे च। संस्कृत दे किधरे किधरे ऐसा भी है 3 शब्दां नूं एक शब्द विच बयान करना, 4 शब्दां नूं एक शब्द विच बयान करना। बहुत कुछ कहना है, थोड़े दे च कहना है तो इस तरह वो करते हैं। भगत शब्द 2 शब्दां दा जोड़ है, भाव अंकित, भावना अंकित हो गई है, टिक गई है। और भगत तो भगत है तो ये चल पे, ये चल पे। इस वास्ते भगत दी बड़ी महिमा है। और गुरबाणी दा फैसला पंडित सूर छतरपत राजा, भगत बराबर और न कोई। पंडित विद्वान ज्ञानी सूरबीर छतरपति राजा धनवान गुणवान, भगत दी बराबरी ते नहीं ने। भगत सब तो अजीम, भगत सब तो महान। पंडित सूर छतरपत राजा, बहुत विद्वान है, बहुत विद्वान है, विद्या च ही रह गया। वेख सकदा, बड़ी दूर तक वेख सकदा, इहदे कोल दूरबीन भी है। ये तारियां तो अगे भी झात मार सकता है, जैसे इकबाल कहते हैं सितारों से आगे जहां और भी है। इत्थे लॉस एंजलिस दे मैनू लै गए सन एक सज्जन, 2-4 साल पहले की गल है। कहने गैनी जी इत्थे पहाड़ दे उत्ते एक ऐसी दूरबीन है, दिन नूं तारे वेखे जा सकते हैं, तो एक अजूबा है, थानू दिखाना है। मैं कहा ठीक है, मैं देखना है। और वाकई मैं देख के हैरान होया कि रात नूं भी इतनी सफाई नाल आदमी तारे नहीं देख सकता कि दिन नूं जिस तरह उत्थे दिखाई देंदे ने। मैं देखदा ही रहा काफी देर तक। मैं सुभावक उन्होंने कह बैठा, मैं कि पंजाब दे ते ऐसी गल है कि किसी नाल ऐसा वैसा कुछ हो जाए ना व्यवहार, तो कहंदा मैं तेनों दिन नूं तारे दिखा देंगा। ते साइंस ने सारियां नूं दिन दे विच तारे दिखा दिते। देखो भाई, दिन नूं तारे देखो। नजरां बहुत दूर तक चलियां गईयां, बहुत दूर तक चलियां गईयां। जो कुछ नहीं वेखिया जा सकता सी मनुख वेख सकता है। अकल बहुत अगे चली गई है, बहुत अगे चली गई है। भावुकता पछड़ के रह गई है। इस सदी दे भावनावां पछड़ के रह गई हैं। अखां बहुत अगे लंघ गईयां, हिरदा बिल्कुल पिछे रह गया। अकल बहुत अगे चली गई, हिरदा बहुत पिछे रह गया। ते हिरदे दे नेड़े कोई होवे तां ही उसनूं सीने नाल लाण नूं जी करदा, वरना तो मुश्किल है। ईरानी लोगां नूं मैं देखिया, अफगानियां ते ईरानियां नूं जद विछड़न भी लगन, दोवें इत्थे हथ रख देन, दोवें। पहले मेरी समझ च नहीं आई सी गल, मैं कहा हद हो गई। हुण विछड़न लगे ने, विदायगी देण आए ने स्टेशन ते, एयरपोर्ट ते, पर जो जा रहे है और जो विदायगी देण आए ने, दोवें हथ रखते ने। बाद च मेरी समझ च आई भी हुण जमीन दे तल ते दूर होण लगे हैं, फासला, पर तू मेरे दिल दे च, तेरी याद रहेगी, तू मेरे दिल दे च रहेगा, तू मैथों दूर नहीं जाएगा, तेरे नाल मेरा संबंध जुड़िया रहेगा। याद सारियां दूरियां मिटा देंदी है। इसनों औरंगजेब दी चहेती लड़की ज़ेबुल नसा ने बड़े आलमाना ढंग नाल बयान कीता है। शालीमार बाग दी गल है, लाहौर दी। पतझड़ दी रुत सी ते गुलाबां दा, गुलाब दा एक चमन सी, सारे ही गुलाब सन। तो हुण खिजां करके मुरझाए हुए, पत्ते भी झड़ गए, गुलाब ते है ही नहीं सी, मौसमे खिजां। लेकिन एक बुलबुल बैठी है, नगमे अलाप रही है एक बूटे ते। ज़ेबुल नसा दी सहेली कहंदी है, मैं ते सुनिया सी ये बुलबुलां फुल्लां दी शौकीन होंदियां ने ते फुल्लां नूं वेख के नगमे अलापदियां ने।
ਫੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਚਹਿਚਹਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਫੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਫੁੱਲ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੀਤ ਗਾ ਰਹੀ ਹੈ। ज़ेबुल सा रूहानी शायरा सी, जैसे कवि दा मन एकाग्र हो जाए तो उसकी कविता रूहानी हो जाती है। जैसे भाई वीर सिंह, जैसे कवि संतोख सिंह। मन एकाग्र हो जाए तो कविता प्रभु की तरफ बहन लग पैंदी है। जैसे डॉक्टर रविंद्रनाथ टैगोर, जैसे डॉक्टर मोहम्मद इकबाल। ज़ेबुल नसा भी इस तरह ही सी, बड़ी इबादत कर रही सी, मन दे च कुछ टिकाव सी। सहेली कहती है ते सुनिया होया सारा गलत हो गया, पढ़िया होया सारा गलत हो गया, फुल ते है ही कोई नहीं। ये गीत गा रही है, चहचहा रही है। तो ज़ेबुल नसा उथे कहती है, शौके बुलबुल कमना गर्दन, गर्रवद गुल अस चमन, हुस्न बे बुनियाद अस्त, इश्क बे बुनियाद नेस्त। रूप नासवंत है, रूप दी दूरी हो सकती है, प्रेम नासवंत नहीं है। तो याद ते है, नहीं फुलते ना से उसकी याद ते है। पहले उसनू वेख के नगमे अलापदी सी, हुण उसनू याद करके नगमे अलापदी है। ज़ेबुल नसा पहले उसनू देख के गीत गांदी सी, हुण उसनू याद करके गीत गांदी। यादां दे तल ते दूरी नहीं आउंदी, हिरदे दे तल ते दूरी नहीं आउंदी। भावें हजारां मील दी दूरी तो होवे, अगर हिरदे च बैठा है तो कादी दूरी है। इस वास्ते ईरानी अफगानियां नूं मैं देखिया इंज हथ लाने, तू मेरे हिरदे च, तू मेरे दिल दे च, तू मेरी याद दे च। तो हुण मैं अर्ज करां, समझ चाहिदी है। अगर ये समझ ना होवे तो फिर परिवार दा नहीं पता चलता। तो परिवार नाल संबंध जोड़ना, अगर जज्बे ना होवन, भावुकता ना होवे, ये भावुकता जो परिवार नाल संबंध जोड़दी है, इसे नूं मोह कहंदे ने। भावुकता मोह बन गई, और मोह दी निंदा नहीं है। इस चक्कर च ना पैना क्योंकि निंदा है। धन गुरु अमरदास जी महाराज कहते ने, कुर्बान कीता तिसे विटों जिस मोह मीठा लाया। सदके जाने हे परमात्मा तैथों तू मोह दे च इतनी मिठास पाई। जे ना आउंदी किस मां ने बच्चे दी देख रेख करनी सी, किस प्यो ने अपने बच्चे नूं मोंडे ते चुकना सी, किसने भरा नूं सीने नाल लाना सी। ये सारे संबंध टुट जाने सन, ये रहना ही नहीं सी। हे प्रभु सदके जाने तैथों, कुर्बान जाने, परिवार बिखरन ना तू मोह पाया है। भावुकता मोह बनती है। भावुकता जब थल्ले दी तरफ बहती है तो मोह बन जाती है। समझते उत्ते है, मेरा पुत्र है, मेरा भरा है, ये मां है, ये पिता है, पत्नी है, ये बच्चे ने। तो मोह, ये संबंध परिवारिक सारा मोह करके है। ते भावुकता जब थल्ले दी तरफ बह, मोह बन जाती है। भावुकता जद एन समतल ते बराबरी दे तल ते वगण लग पवे, इनू प्रेम कहंदे ने। मोह दे च मंग है, इस करके कहंदे ने मोह स्वार्थी है। अगर मोह वस हो के मां बाप बच्चे दी पालना पे कर देन, सारे सुख पे देंदे ने, ते बदले च इन्हां बच्चियां ने वड्डे होके सुख ना दिता, तो फिर मां बाप नूं दुख बहुत होंदा है। असी इतना सुख दिता, ये नहीं दे रहे। तो जे बदले च किधरे दुख दिता तो फिर बददुआवां भी निकल पैंदियां। ये भी मैं अर्ज करते हैं। पता नहीं कितनी मावां तो मैं सुनिया, कितने प्यों तो सुनिया, ये मर जांदा ही ठीक सी, गुस्ताखी माफ, दूर क्यों जाओ। कबीर दी मां कह रही है, सात सूत इन मुंडिया खोए, इन मुंडिया क्यों ना मोयो। सतरंगा सूतर सी, कथिया सी कबीर दी मां ने,
ਤੇ ਰੰਗਿਆ ਸੀ। ਖੇਸ ਬਣਾਣੇ ਸਨ, ਚਦਰਾਂ ਬਣਾਣੀਆਂ ਸਨ। ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਦਾ ਮੇਲਾ ਤੇ ਕਬੀਰ ਦੇ ਘਰ ਸਾਧੂ ਬਹੁਤ ਆ ਗਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਨ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਦਾ, ਇਤਨੀ ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਵਿਚਾਰਾ ਉਹ ਸੂਤ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜੋ ਮਾਂ ਨੇ ਕਤਿਆ ਸੀ ਤੇ ਰੰਗਿਆ ਸੀ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਵੇਚ ਆਇਆ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਪੜਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਦੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਥਾਨ ਅਜੇ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਸੰਗਤ ਬਹੁਤ ਆ ਗਈ। ਕਬੀਰ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਣ ਕੇ, ਕਬੀਰ ਦੀ ਰਸਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੇਖ ਕੇ, ਕਬੀਰ ਦੇ ਬੋਲ ਸੁਣ ਕੇ ਘਰ ਦੇ ਚ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਆ ਗਏ। ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਬੀਰ ਦੀ ਮਾਇਕੀ ਹਾਲਤ ਕੀ ਹੈ, ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਤਰੰਗ ਦਾ ਜੋ ਸਤਰੰਗਾ ਸੂਤਰ ਸੀ ਵੇਚ ਆਇਆ। ਅੰਨ ਪਾਣੀ ਖੁੱਲਾ ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਚ ਇਸਨੇ ਚਲਾਇਆ। ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਦ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ, ਲੈ ਮੇਰੀ ਮਹੀਨੇ ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਇਸਨੇ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਖਪਦੀ ਰਹੀ, ਸੂਤ ਕੱਤਦੀ ਰਹੀ, ਕੱਤਦੀ ਥੱਕ ਗਈ, ਰੰਗਦੀ ਸੁਕਾਂਦੀ ਸੁਕਾਂਦੀ ਮੈਂ ਥੱਕ ਗਈ। ਇਹ ਵੇਚ ਕੇ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਖਿਲਾ ਬੈਠਾ। ਤੋ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀਆਂ ਪੜੋਸਣਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਕਬੀਰ ਦੀ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਸੁਨੋ ਦੇਰਾਨੀ ਸੁਨੋ ਜਿਠਾਨੀ ਅਚਰਜ ਏਕ ਭਇਓ, ਸਾਤ ਸੂਤ ਇਨ ਮੁੰਡਿਆ ਖੋਏ, ਇਹ ਮੁੰਡਿਆ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੋਇਓ। ਇਹ ਜੰਮਦਿਆਂ ਹੀ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਚੰਗਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹਾਂ। ਐਸਾ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮਾਵਾਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤਨਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ। ਜੇ ਕਬੀਰ ਦੀ ਮਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤਨੇ ਪਿਤਾ ਮੈਂ ਦੇਖੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਇਹ ਨਾ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਠੀਕ ਸੀ। ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤਨਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ। ਮੋਹ ਸੀ ਤਾਂ ਮੋਹ ਦੇ ਚ ਕੀ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਤੇ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਰਿਹਾ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੰਧ ਜੋੜੇ ਨੇ ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਹੁਣ ਮੋਹ ਅੱਗੇ ਦੀ ਤਰਫ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਤਰਫ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਂ-ਬਾਪ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਨੇ, ਪਤਨੀ ਅੱਗੇ, ਬੱਚੇ ਅੱਗੇ ਨੇ, ਮੋਹ ਉਸ ਦਾ ਅੱਗੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਮਾਂ-ਬਾਪ ਪਿੱਛੇ ਖੜੇ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਾਂ ਔਖੀ ਹੈ, ਪਿਤਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਰੱਬੀ ਨਿਯਮ ਦੀ ਸਮਝ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅੱਖਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਹੀ ਦੇਖਦੀਆਂ ਨੇ, तो पुरुष अगे देखेगा, पुत्रा ਨੂੰ ਦੇਖੇਗਾ, ਪੋਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖੇਗਾ, ਪਿੱਛੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ, ਦਾਦੇ ਦਾਦੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇਗਾ। ਤਰਸਦੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਦਾਦੀ ਦਾਦੇ ਪੋਤਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੋਤਰਾ ਕੋਲ ਬੈਠੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਖੇ। ਖੈਰ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲਮਕਾਵਾਂ ਨਾ। ਮੋਹ ਦੁਖਦਾਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਹ ਤੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਦੇਣਾ ਲੈਣਾ ਨਾ ਬਣੇ तो दुख हो जाएगा। देना अगर लेना ना बने, लेना अगर देना ना बने तो फिर तो दुख हो जाता है। प्रेम दे देना ही देना है, कुर्बानी है, निछावर होना है, सदके होना है। भावुकता जब समतल ते वगदी है तो प्रेम कहलांदी है, मोह नहीं। प्रेम प्रेम दे बड़े गीत गाए ने शायर लोगां ने, कवि लोगां ने, भगतां ने। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज ते इत्थे तक कहंदे ने, जिनी चाखिया प्रेम रस से तृप्त रहे आघाए। गुरु नाल भी मोह हो सकदा, लैण देण दा संबंध। बई मैं इन्ने डॉलरां दी पर्ची कटाई है, अखंड पाठ रखाया, इन्ना लंगर कराया है, हे गुरु तेरे अगों अरदास भी कराई सी, साडा कम ते सिरे नहीं चढ़िया, साडी गल ते तू मन्नी नहीं, ते तू साडी गल नहीं मन्नी ते असीं तेरा दर छड्डिया हुण नहीं आउंदे तेरे कोल, तू गल ते साडी सुनी नहीं। ये मोह करके आया, ये प्रेम करके नहीं आया।
और मोह करके कोई सारी जिंदगी भी आंदा रहे, तृप्ति नहीं होगी। ये भी मैं अर्ज कर दिया, क्योंकि ये पिता इतना सियाणा है, इनू पता है की कुछ देना है। कई दफा बच्चा वो मंग लैंदा है जो उसके लायक नहीं है, या उसनों मिल गया तो उसकी गलत वरतों करेगा और खुद तबाह हो जाएगा। जैसे चंचल मत बारिक बपरे की, सर्प अगन कर मेले, बलदी हुई अग ए बच्चा हथ पाना चाहता है, मां रोकती है नहीं, बच्चे नूं खिंचदी है। ये रोंदा होया बच्चा मां नूं दुश्मन समझ बैठता है, पर रोंदे हुए बच्चे ते तरस खा के मां छोड़ देवे, ले पा अग दे च हथ पा, ते मां ना होई ते डायण हो गई। फिर इस मां ने मां होने का फर्ज नहीं निभांदा, रोंदा है ते रोण दो बच्चे नूं, छोड़ना नहीं इसनूं, ये ते अग दे जाना चाहता है, रोंदा है ते रोवे। कई दफा गुरु परमात्मा कहता है कुरलाना ते तू कुरला, तड़पना ते तू तड़प, ये ते नहीं देना तेनों, ये तेरे लायक नहीं है, तू इसकी गलत वरतों करेगा। तो मनुख कुरलांदा रह जाता है, तड़पदा रह जाता है, मैं अखंड पाठ रखाया सी, लंगर चलाया सी, ना दान पुन कीता, इन्नी सेवा की थी, तू गुरु साडी गल नहीं सुनी, ते जे गल नहीं सुनी इसे तेरी भलाई है, इसी च तेरी भलाई है, अगर तू समझ सके, अगर तू जान सके। भावकता जद समतल ते बगदी है तो प्रेम कहलांदी है। जिन्हें चाखिया प्रेम रस से तृप्त रहे आगाए, प्रेम दे च कुर्बानी है। गुरु ने कहा मैनू सीस चाहिदा है, खड़े होके दया सिंह कहंदे ने पातशाह जिस दिन ये सीस तुहाडे कदमां ते रखिया सी, ये ते उदों दा ही तुहाडा है, असी ते अपना समझिया ही नहीं। ऐ लो साडे धड़ नाल लगे होया सी, लो जद दिन दा तुहाडे कदमां ते रखिया है ते सिर तुहाडे कदमां ते ही है, ले लो। प्रेम दे च कुर्बानी आउंदी है, ऐसा नहीं है। और फिर गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज की कुर्बानी, मोह ग्रह में मन ते तन ते धन लो सिर है, सब ही इन को। मेरे घर दे च मन करके तन करके धन करके जो कुछ भी है ए खालसा तेरा ही है, तेरा ही है, मेरा कुछ भी नहीं। ये थोड़ी गलती नहीं है। मोह ग्रह में मन ते तन ते धन लो सिर है, सब ही इन ही को। महाराज किधरे साड़ी खुशामद ते नहीं, तो साहब कहना नहीं, या मैं रंच न मिथ्या बाखी, पार ब्रह्म गुरु नानक साखी। मैं पार ब्रह्म गुरु नानक नू साखी करके कहना, मेरे घर दे जो कुछ भी है सब तेरा, सब तेरा, सब तेरा। पर मां अगर सदके होवे एक बच्चे थे, तो बच्चा खुश होके आके हुण मैं अग दे च हथ पाना है क्योंकि मां खुश बड़ी है, तो मां रोके बच्चे की खुशी रोने च बदलेगी, रोवे पिया मां हथ नहीं छोड़ेगी। ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇਰੀਆਂ नहीं पूरियां हो रही, पुरखा तेरे लिए ठीक नहीं सन, पर भावकता जद प्रेम बनती इस विच मंग रहिंदी नहीं। यह भी मैं अर्ज करते हैं, जिन्हें चाखिया प्रेम रस से तृप्त रहे आगाए। ये प्रेम कदी मनुखां दी तरफ भी वग सकता है। जैसे भाई गुरदास जैसे अजीम महान विचारक नूं, दार्शनिक नूं ते गुरु घर दे वेद व्यास नूं भी लैला मजनू की गल करनी पई, सोनी महिवाल की गल करनी पई, हैरानगी। 2-4 पौड़ियां विच लगातार उन्होंने जिक्र किया है, लैला दी दरगाह दा कुत्ता मदनू देख लुभाना। चलो कोई आम कवि आम शायर इस तरह लिखे कहे, पर नहीं, ये भाई गुरदास जी दे बोल ने। और इस बाणी नूं कीर्तन दे च गायन करन दी पंथक इजाजत है। ये कीर्तन दे च भी गायन हो सकती है, इस बाणी दा कीर्तन भी हो सकता है। तो कीर्तन दे च लैला मजनू दे किस्से गाइए, हाँ गाने पैणगे। लैला मजनू आशकी चौचक्की जाती, महीवाल नू सोनी नै तरदी राती, सस्सी पुन्नू दोस्ती ओ जात को जाती। हद हो गई। इन्हां सारियां दा जिक्र करिए एक धार्मिक सथल दे
ਔਰ ਗਾਈਏ ਤੇ ਸੁਣੀਏ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ। ਹਾਂ, ਇਹ ਉਹ ਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਮੋਹ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੈਣ ਦੇਣ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪ੍ਰੇਮ ਸੀ। ਨਿਛਾਵਰ ਹੋਏ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ, ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਏ, ਸਦਕੇ ਹੋਏ। ਇਹ ਮੋਹ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੋਈ ਲੈਲਾ ਦਾ ਮਜਨੂ ਨਾਲ ਮੋਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਜਨੂ ਦਾ ਲੈਲਾ ਨਾਲ ਮੋਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਦਕੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਲੈਣ ਦੇਣ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੋਹ ਹੈ। तो भाई गुरदास जैसे ਨੂੰ भी उपमा करनी पई इन्हां दी। दूर क्यों जाओ नंद लाल ਨੂੰ भी करनी पई। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे 52 कवियां दे चों सिरमौर ते गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे अजीम अनंत सिख ते जिन्हां दे ते सतगुर स्वयं माण करदे सन, नंद लाल ने भी उपमा कीती है। कोई एक शायर लैला मजनू दा किस्सा लैके आ गया सी भाई साहब दे कोल, भाई नंद लाल दे कोल, ते कहन लगा भाई साहब मैं सिर्फ थानू 2-3 सफे सुनाने ने। 2 सफे मजनू दे, 2 सफे लैला दे, क्योंकि सारी किताब सुनानी ते औखी है ते थोड़ी राय लेनी है मैं ठीक लिखे है कि नहीं। एक कवि ਨੂੰ रूहानी खुशी उस दिन मिलती है जब उसकी कविता ਨੂੰ कोई कवि दात देवे। उंज सिर हिलाण वाले तो बथेरे होंदे ने, रस लैण वाले तो बथेरे होंदे ने, पर कवि ਨੂੰ रूहानी खुशी नहीं मिलती। कवि ਨੂੰ रूहानी खुशी उस दिन मिलती है जब उसकी खोज ਨੂੰ और उसकी कविता ਨੂੰ कोई कवि दात देवे। संगीत की धुन सुन के सिर ते बथेरे हिलाणगे, रस भी आ सकता है, पर संगीतकार ਨੂੰ रूहानी खुशी उस दिन मिलती है जब कोई संगीतकार उसनों दात देवे। उंज नहीं। यह भी मैं अर्ज करते हैं, किसी मुसव्वर की बनाई हुई तस्वीर ਨੂੰ देख के वाह वाह करी जानी, ਇਹਦੇ ਨਾਲ मुसव्वर ਨੂੰ रूहानी खुशी नहीं मिलती। पर कोई मुसव्वर, कोई चित्रकार कह दे कमाल है, यकीन जानो ਉਹਨੂੰ रूहानी खुशी मिलती है, क्योंकि वो जानकार है, समझदा है। कोई समझदार महिमा गायन करे, जिहड़ा वाह वाह कर रहा है तो समझ कुछ भी नहीं। तो उस शायर ਨੂੰ पता है, लतीफ इसदा नां सी, इसनों पता है नंद लाल कविता की दुनिया च बहुत अगे है, बहुत अगे है। तो परशियन का लिखिया होया है ग्रंथ जो लैला मजनू का किस्सा सी, भाई नंद लाल को ले आया ते नंद लाल दी मादरी जबान परशियन सी, अफगानिस्तान तो आए सन, गजनी तो। कहंदे ने ये शायर थोड़ा जिहा तरन्नम दे कहण लग पिया, गा के तरन्नम दे। अक्सर मुस्लिम शायर अपनी शायरी करीबन करीबन 80% शायर कविता नूं, शायरी नूं तरन्नुम दे पेश करते हैं। उन्हें भी तरन्नुम दे गा के किस्सा बयान करना शुरू किया मजनू दा। 2 सफे पहले मजनू दे थोड़े जिहे बोल सुने ने भाई साहब पहले अश्कबार होए, भावक होए, फिर जुड़ गए। 2 सफे सुनाण तो बाद ये शायर कहता है, भाई साहब हुण मैं थानू लैला दा किस्सा सुनाण लगा, ते हुण तुसी लैला दी गल सुनो। तो पता है हुण भाई साहब भाई नंद लाल की कहंदे ने, वो बोल मैं थोड़े सामने रखा। भाई साहब भाई नंद लाल आप कहंदे ने, मगो अजहाले लैली बादले शौरीदा है गोया कि शराए किस्सा है मजनू मरा दीवाना में साजद। नंद लाल दे पागल दिल नो लैला दा किस्सा ना सुना। मैं मजनू दा किस्सा सुन के अपनी अकल गवा बैठा। जे तू हुण लैला दा किस्सा सुनाया तो मैं अपनी जान गवा बैठांगा। ना सुना, मैं नहीं सुन सकता, मेरे च ताब नहीं है। इतना प्रेम, ऐसा प्रेम मैं नहीं सुन सकता, मेरी सुध बुध खो गई है।
मैं नहीं सुन सकता। हद हो गई। गल मजनू दी सुनी, जुड़ गए परमात्मा नाल। लोकी परमात्मा दी गल सुन के भी परमात्मा नाल नहीं जुड़दे। गल सुनी मजनू दी ते जुड़ गए कलगीधर नाल। लोकी कलगीधर दी गल सुन के भी कलगीधर नाल नहीं जुड़दे। इतना भावक हिरदा नंद लाल दा। मगो अजहाले लैली बादिले शौरीदा है गोया कि शराहे किस्सा है मजनू मरा दीवाना में साजद। मैं ते दीवाना हो गया, पागल हो गया। हुण पागल नूं होर की सुनाएगा? ना सुना। मैं अपनी अकल खो बैठा। मेरी सोचनी जांदी रही है मजनू दी गल सुन के। प्रेम दे चाहुंदा है फिदा होना, कुर्बान होना। लोकी कहंदे ते हन मैनू तेरे नाल प्रेम है, तेरे नाल प्रेम है। पता नहीं कित्थे मैं बैठा सी, एक मैनू कहण लगा इस आइसक्रीम नाल मैनू बड़ा प्रेम है। मैं कहा होवेगा तैनू बड़ा प्रेम आइसक्रीम नाल। हुण ये भी नहीं पता प्रेम दे अर्थ की ने। प्रेम ते कुर्बानी ते खड़ा है, निछावर होण ते खड़ा है। हुण आइसक्रीम ते निछावर होवेगा, कुर्बान होवेगा? मैनू आइसक्रीम नाल बड़ा प्रेम है, फलाने फलां नाल बड़ा प्रेम है। लोकी प्रेम शब्द नूं ऐसी ऐसी थावां ते वरत चुके ने, ये अल्फाज अपनी अहमियत गवा बैठे। ये भी मैं अर्ज करते हैं। खैर मुख्तसर जो है मैं अर्ज करा, यही भावकता जद उपर दी तरफ उठे जिवें फुआरे दा पानी, ये भावकता जब थल्ले दी तरफ जावे आबशार थल्ले आ रही है। मोह ये समतल ते वग रही है प्रेम, पर इस दे च उछाल आ जाए जैसे कि बदल उमड़ पे ने, उछल पे ने, सागर तो ऊपर जा रहे ने, ऊपर उठ गए ने। जैसे कि फुआरे दा पानी कुछ ऐसा प्रेशर मिले है, ऊपर उठ गया है। इनू भगती कहंदे ने, भगती रस। प्रेम दे सारे विचार खो जांदे ने, भगती दे सारे पाप खो जांदे ने। ये भी मैं अर्ज करदे हैं। ऐन हिरदे नूं कंचन वर्गा कर देंदी है भगती। पानी ऊपर दी तरफ उछल पे, ये ते ऊपर उठ गया, इतना हल्का हो गया, हवावां दे मोंडियां ते असवार होके ऊपर जा रहा है। बदल सुरत उच्ची हो गई, बहुत उच्ची हो गई। भावकता भक्ति बन गई है। भाव अंकित होया है और भक्ति दे रूप दे। भाव अंकित होंदा है किधरे मोह दे रूप विच, भाव अंकित होंदा है किधरे प्रेम दे रूप विच, भाव अंकित होंदा है किधरे भगती दे रूप विच। और मैं ये अर्ज करा, तिन्हां दी अपनी महिमा है। कोई मोह करके भी गुरु कोल आ सकदा है, लेना देना है, लैण देण दा संबंध है। कोई प्रेम करके भी आ सकता है, विचारां दी सांझ है। बहुत उच्चाई नसीब नहीं होगी। ऐ गुरु भावें तू बराबरी देना है, भावें तू आखदा है खालसा मेरो रूप है खास, भावें तू बराबरी देना है, भावें तू सानू समतल देना है, कितना भी समतल देवें तो फिर भी उच्चा है, तो फिर भी महान है। तेरी महिमा फिर भी नहीं बयान कर सकते। तेरी उच्चाई है। ये गल वखरी है, चलो तू सानू बांह दे दी, तेरी बांह पकड़ के असी ऊपर आ गए, तेरे बराबर भी बैठ गए, तू बराबरी ते भी बिठा देता, फिर भी तू उच्चा है, फिर भी तू महान है। ये भक्ति रस है। सारे पाप खो जाते हैं, सारे पाप जो है धुल जाते हैं। साध संगत बिन भाव नहीं उपजे, भाव बिन भगत ना होए तेरी। भगत रविदास कहते ने, सतसंग तो बिना कथा कीर्तन सुने बिना भावना नहीं पैदा होती, ते भावना तो बिना भगती नहीं, ते भगती तो बिना भगवान किथे, परमात्मा किथे। धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज रहमतां करन, सारियां ते बख्शिशां करन। रब दी गल कीर्तन राही सुनदियां सुनदियां, कथा राही सुनदियां सुनदियां भाव पैदा होवे, और भाव दे इतना उछाल आवे कि भाव भगती बन जाए, और साडा संबंध उस अकाल पुरख नाल जो है जुड़े, साडे सारे पाप मिटन, साडे सारे दुख मिटन,
सतगुर सारियां ते ऐसी मेहरामद करन। इतने ही शब्द प्रवान करने, इत्थे ही समाप्ति। हाँ, शाम का भी दीवान सेठी साहब होरी कहते सन रखिया है जी। तो रोज की तरह 7 बजे तो लैके 9 बजे तक शाम ਨੂੰ भी इसे तरीके नाल दीवान सजणगे, कीर्तन होवेगा, कथा होवेगी, विचारां होणगियां। उम्मीद है आप शाम ਨੂੰ वक्त कढ़ के पहुंचण की किरपालता करोगे। तो शाम ਨੂੰ दास ने मूल मंत्र की विचार आरंभ की हुई है, तुच्छ बुद्धि अनुसार उही आप जी के सामने रखांगे। सारियां दा हार्दिक तौर पर धन्यवाद। भुल चुक दी क्षमा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।